Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Abdul Majid Khan, your biology teacher. Welcome to Noor Virtual Classes. Unit 2, Solving a Biological Problem. In previous lectures, we have discussed biological method through which we solve biological problems. So, we have discussed that biological method have different steps, and we have discussed each step in detail. Now, in the first step, recognition of biological problem, a question arises, formulation of a question related to biological problem. So, after the question arises related to biological problem, our next step starts. What biologists do? They do observations and recall previous research or previous knowledge. In second step, they recall previous knowledge on that biological problem by someone else and made new observations on that problem by themselves. And after that, in the third step, they formulate a hypothesis. What is hypothesis? It is a statement that is tentative, that is not 100% true, that may be true, may be false. So they formulate a hypothesis, and after formulating the hypothesis, not only a single hypothesis, they may formulate different hypotheses, many hypotheses. So after formulating hypothesis, they go towards the next step, that is deductions. So they will deduct unlogical hypothesis and will continue with the logical ones through the next step. So in deductions, biologists use two terms, if and then. With the help of these terms, they made logic of hypothesis and check this logical hypothesis in the next step, that is experimentation, that this hypothesis is true or not. If this hypothesis is not true, then biologists go towards observation again, and if it is true, then they go towards conclusions and draw results, analyze data and summarize the whole research. खुलासा लिखेंगे अपनी पूरी रिसर्च का, उससे नताइज अखज़ करेंगे, कंक्लूड करेंगे, and then reporting. How they will report their research, their findings, their results, conclusions? In the form of scientific or research articles, and then these articles will be published in scientific journals or books, or may be presented in different science seminars. So we will apply the biological method we have studied in ancient biological problem, that is malaria. About 200 years ago, a biological problem exists. जैसे कि आज कोविड-19 है, आज से 200 साल पहले मलेरिया, इट वाज नोन एज डेडलीस्ट डिजीज़, इसकी वजह से बहुत सारी अमवात होती थी। 1/3 रेशो थी डेथ्स की, यानी कि 3 में से 1 आदमी मरता था और 2 बच जाते थे। तो इस डिज़ीज़ को, इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को एज अ एग्ज़ाम्पल लिया गया है आपकी बुक में। तो बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया था, तो इसको हम देखते हैं।
तो इसमें हमें मलेरिया के बारे में भी पता चल जाएगा और बायोलॉजिकल मेथड कैसे अप्लाई होता है, यूज़ होता है, हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो आपकी बुक में 2000 ईयर्स एगो लिखा है, आई थिंक ये मिस्टेकनली लिखा होगा। तो 200 ईयर्स एगो ये मलेरिया की वबा या बीमारी जो थी ये राइज़ हुई थी, और तब फिजिशियंस कहते हैं डॉक्टर्स को, ये फिज़िक्स वाले नहीं, फिजिशियंस, फिज़िक्स पढ़ने वालों को फिजिसिस्ट कहते हैं या फिजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये फिजिशियन मीन्स डॉक्टर। उस टाइम के जो डॉक्टर्स थे वो मलेरिया को जानते थे एज अ डिजीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर, डिजीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर बुखार को कहते हैं, और चिल्स सर्दी की वजह से कांपना। शिवरिंग होता है, शिवरिंग मीन्स किसी भी वजह से कांपना, खौफ की वजह से, बट चिल्स सर्दी की वजह से कांपने को हम क्या कहते हैं, चिल्स कहते हैं। So disease of chills and fever, malaria is the disease of chills and fever according to the physicians of that time, about 200 years ago from now. So these chills and fevers was recurring attacks of chills and fevers in malarial patients। जिसको मलेरिया हो जाता था उसको रिकरिंग अटैक्स होते थे फीवर और चिल्स के। रिकरिंग अटैक्स मीन यानी कि एपिसोड्स होते थे फीवर के, अभी 2 घंटे तक बुखार था, फिर उतर गया, फिर 2-3 घंटे नहीं था, फिर स्टार्ट हो गया। तो इस तरह फीवर्स के एपिसोड्स होते थे। अब उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, उस टाइम के लोगों ने या फिजिशियंस ने या बायोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्वेशंस की कि जो लोग मार्शी प्लेसेस में रहते हैं, लो मार्शी प्लेसेस में, मार्शी प्लेसेस वो जगह जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर हो, यानी कि वाटर जहाँ पे खड़ा हो, दलदल जिसको हम कहते हैं। तो ये जो स्टेगनेंट वाटर है, जो ये पानी गंदा होता है, खड़ा पानी ये गंदा होता है, और ये एयर को पॉइज़न करता है, गंदा करता है। ये उनकी ऑब्ज़र्वेशन थी। तो इस एयर को वो बैड एयर कहते थे, गंदी एयर या बैड एयर इसको कहते थे। तो वो समझते थे कि जो इस एयर को इनहेल करेगा उसको मलेरिया होगा। मलेरिया वर्ड पे अगर गौर किया जाए तो ये 2 लैटिन वर्ड्स हैं, मेला एंड एरिया। मेला का मतलब होता है बेड और एरिया का मतलब होता है एयर। तो दोनों को अगर साथ मिला के पढ़ा जाए, मेला, एरिया, मलेरिया, बेड एयर। तो ये उनकी एजम्पशन थी, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग थी रिलेटेड टू मलेरिया। फिर क्या हुआ कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल हुई। 17th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी, आज कौन सी सेंचुरी है, 2020, 20वीं सदी है, नहीं, 2200 ये पूरे हो चुके हैं और अभी ये चल रहा है जो, तो ये क्या है, 21st सेंचुरी है, 21वीं सदी है। तो 17वीं सदी में, 17वीं 16 समथिंग, ठीक है, 17वीं सदी में जब अमेरिका डिस्कवर हुआ, इसको यूरोपियंस या दुनिया, एक नई दुनिया तस्वर करते थे, क्योंकि समंदर के पार था तो लोगों को पता नहीं था। सो यहाँ से जो डिफरेंट ताजिर थे, जो एक्सपोर्टर्स थे, ताजिर थे, वो अमेरिका से मेडिसिनल प्लांट्स यूरोप भेजा करते थे। तो ये मेडिसिनल प्लांट्स जो यूरोप भेजा करते थे, इनमें एक प्लांट था क्वीना। इसकी बार्क
या छिलका वो यूज़ होता था फीवर के लिए, बुखार के लिए। तो लोग क्या करते थे उस टाइम, क्योंकि जिसको बुखार हो जाता था वो कहते थे मलेरिया, जैसे आजकल बुखार या कफ तो कहते हैं इसको कोरोना हो गया है, तो उस टाइम भी ऐसे ही जिसको बुखार हो जाता था तो वो क्वीना की छल्ली, बार्क इस प्लांट की, ये क्वीना एक प्लांट था, इसकी छल्ली को फीवर के लिए यूज़ करते थे, बुखार के लिए यूज़ करते थे। तो इसकी डिमांड ज़्यादा हो गई, तो जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाए तो वो चीज़ मार्केट में महंगी हो जाती है या फिर शार्ट हो जाती है। तो जो ताजर थे, एक्सपोर्टर्स थे, उन्होंने क्या किया, क्वीना की जगह सिनकोना, एक क्वीना की तरह ही दूसरा दरख्त था, उसकी छल्ली बेचना शुरू कर दी या लाना शुरू कर दी, क्योंकि क्वीना जो है वो वहाँ पे कम हो गया था। तो ये जो इनकी डिसऑनेस्टी थी, जो क्वीना की बजाय सिनकोना बेचते थे, ये डिसऑनेस्टी ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल साबित हुई। कैसे बेनिफिशियल साबित हुई कि इन दोनों में क्यूनीन एक केमिकल कंपाउंड, एक ड्रग था, दोनों में पाया जाता था, लेकिन क्वीना की जो क्योरिंग रेट था वो लो था एज़ कंपेयर टू क्योरिंग रेट ऑफ सिनकोना। एकदम से इससे वो ठीक हो जाते थे। तो ये सारी हिस्ट्री थी मलेरिया की। अब हमें समझना आसान होगा। जो मलेरियल स्टडी थी, इसमें जो पहला बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था वो था व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। इसके बाद दूसरा आपकी बुक में डिस्कस किया है, उस पे बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम पहला प्रॉब्लम देखते हैं और इस पे हम बायोलॉजिकल मेथड को अप्लाई करते हैं, दैट व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया ट्रीटमेंट तो उनको मिल गई, लेकिन काज तक अभी नहीं पहुँचे। ठीक है, तो जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज हो गया, क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशंस में जो पीपल और फिजिशियंस थे उस टाइम, एंशिएंट टाइम्स में, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, इस मलेरियल प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस की कि जो मलेरियल पेशेंट्स होते हैं इनमें चिल्स और फीवर्स होते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं मलेरिया बीमारी के। यानी कि जिस शख्स को चिल्स और फीवर होगा, चिल्स और फीवर के रिकरिंग अटैक्स होंगे, एपिसोड्स में फीवर और चिल्स होंगे, तो इट मीन्स कि उसको क्या हो गया है, मलेरिया हो गया। सो पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, द पेशेंट्स ऑफ मलेरिया एक्सपीरियंस रिकरिंग अटैक्स ऑफ चिल्स एंड फीवर्स। ये पहली ऑब्जर्वेशन थी बायोलॉजिस्ट की या लोगों की या उस टाइम डॉक्टर्स की, फिजिशियंस। फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, द डिजीज़ वाज मोर कॉमन एमंग पीपल हु लिव्ड इन लो मार्शी एरियाज़। जो दलदली इलाकों में रहते हैं जहाँ पे पानी खड़ा होता है, तो उन लोगों में ये डिज़ीज़ कॉमन थी। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन मार्शी एरियाज़ एंड मलेरिया। तो इस ऑब्जर्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि मार्शी एरिया और मलेरिया में कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर है कि मार्शी एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उन्हीं में ये बीमारी होती है, उन्हीं में ये बीमारी कॉमन है। फिर इसके बाद एक थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि कुछ लोगों को वॉलंटरीली, रज़ाकाराना तौर पे, यानी कि वो वॉलंटियर्स थे कि आप
आप पे टेस्ट किया जा रहा है तो वो तैयार हो गए इस बीमारी से जान छुड़ाने के लिए, उनको ये गंदा पानी पिलाया गया। ठीक है, ये जो ऑब्ज़र्वेशन थी इसकी बेस पे गंदा पानी उन लोगों को पिलाया गया और उनमें मलेरिया डेवलप नहीं हुआ। When some volunteers drank water from marshes, they did not develop malaria. उनको मलेरिया नहीं हुआ। तो एक नई ऑब्जर्वेशन बनाई गई। सो न्यू ऑब्जर्वेशन इज़ मेड, दैट इज़ ड्रिंकिंग मार्शी पॉन्ड वाटर डिड नॉट काज मलेरिया। यानी कि मार्शी वाटर मलेरिया काज नहीं करता। इनमें रिलेशन ज़रूर है कि जिस जगह पे वो लोग रहते हैं वहाँ पे कॉमन है मलेरिया, लेकिन मार्शी वाटर की वजह से काज नहीं हो मलेरिया काज नहीं होता। इससे वो बात भी गलत साबित हुई कि जो मार्शी वाटर है, पॉन्ड वाटर है, वहाँ एयर को वो गंदा कर रहा है, पॉइजन कर रहा है। ठीक है। और चौथी ऑब्जर्वेशन ये थी कि क्यूनीन जो है इट इज़ द इफ़ेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। हमने डिस्कस किया क्यूनीन ये इफ़ेक्टिव है टू ट्रीट मलेरिया। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। और एक साइंटिस्ट था लेब्रॉन, ठीक है, ये एक फ्रेंच सर्जन था। 1878 में उसने रिसर्च स्टार्ट की मलेरिया के ऊपर। उसने क्या किया, मलेरियल पेशेंट से ब्लड लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे उसने ऑब्ज़र्व किया। ही टुक द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट एंड ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप और एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। सो व्हाट ही फाउंड, what was his observations? He observed that small tiny creatures are present in the blood of malarial patients. लेकिन उस टाइम ये बात इसकी किसी ने नहीं मानी। तो 2 साल बाद यानी कि 1880 में एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसने सेम क्रिएचर्स दोबारा ऑब्ज़र्व किए मलेरियल पेशेंट के ब्लड में। तब भी किसी ने ध्यान न दिया। फिर उसके भी 3 साल बाद यानी कि 1883 में एक और साइंटिस्ट ने सेम क्रिएचर्स देखे और फिर इन क्रिएचर्स को तब नाम दिया गया किस चीज़ का, प्लाज्मोडियम का। उस टाइम में समझा जाता था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ये ज़्यादातर डिजीज़ काज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स तकरीबन 90% से ज़्यादा डिजीज़ काज करते हैं। उस टाइम माइक्रोस्कोप का यूज़ कॉमन हो गया था। तो फिर ये जो टेनी क्रिएचर्स थे जो कि मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में पाए जाते थे, इनको प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। तो ये हम 2 स्टेप्स से गुज़र चुके, how to recognize a biological problem and how they did observations on that problem. अब ऑब्जर्वेशंस की बेस पे उन्होंने हाइपोथेसिस बनाया कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। ये जो टिनी क्रिएचर्स ब्लड में मौजूद हैं जिनको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, ये मलेरिया काज करता है। तो ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट थी, ये 100% ट्रू नहीं थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर डिडक्शन बनाई। डिडक्शन में हम क्या करते हैं, इफ़ देन का यूज़ करते हैं। तो इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, ये उन्होंने स्टेटमेंट बनाई लेब्रॉन ने और दूसरे साइंटिस्ट ने कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन एवरी मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर प्लाज्मोडियम, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, ये टिनी क्रिएचर्स मलेरिया का काज हैं, तो फिर हर एक मलेरियल पेशेंट में के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। लॉजिकल स्टेटमेंट है या नहीं है? अब यहाँ पे देखें
हाइपोथेसिस एक ही बनती थी, ऑब्जर्वेशंस की बेस पे एक ही हाइपोथेसिस बनती थी। वैसे तो एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस होती हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट वन हाइपोथेसिस थी। फिर इस हाइपोथेसिस, एक ही हाइपोथेसिस को लॉजिकल बनाया गया इफ़ देन की मदद से नेक्स्ट स्टेप में डिडक्शन में। इसके बाद क्या किया? इसके बाद साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में आपको पता है कि एक ग्रुप एक्सपेरिमेंटल होता है और दूसरा ग्रुप कंट्रोल होता है, ताकि हम दोनों में कंपैरिजन कर सकें, कंट्रास्ट कर सकें। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी 100 पेशेंट्स लिए गए और कंट्रोल ग्रुप में भी 100 बंदे लिए गए। यहाँ पे मलेरियल पेशेंट्स लिए गए, वहाँ पे हेल्दी पर्सन्स लिए गए, जिससे कंपैरिजन किया गया। अब माइक्रोस्कोप के नीचे जब मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड एग्जामिन किया गया तो उसमें क्या देखा गया कि सब में प्लाज्मोडियम मौजूद है। प्लाज्मोडियम वाज प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ ऑल द 100 मलेरियल पेशेंट्स। ये एक पॉइंट आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि another group was taken, that was control group, in which 100 healthy individuals were placed, and when the blood of these healthy individuals were examined under the microscope, plasmodium was not found according to your book, but इन 100 बंदों में से 7 बंदों में प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो ये बड़ी हैरानी की बात थी कि 100 में से 7 बंदों में प्लाज्मोडियम मौजूद है। उसकी वजह ये थी कि एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? ये एक टाइम ड्यूरेशन होता है, ये एक टाइम पीरियड होता है जब पैरासाइट आपकी बॉडी में एंटर होता है, उससे लेकर जब तक सिम्टम्स बीमारी के अपीयर रूनुमा ना हो जाएं, तब तक का जो टाइम पीरियड होता है, इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 हफ़्ते पहले मेरी बॉडी में प्लाज्मोडियम एंटर हुआ, लेकिन मुझे आज बुखार और चिल्स हुए, आज सिम्टम्स मलेरिया के अपीयर हुए। तो इसका मतलब है ये जो 1 हफ़्ते का टाइम ड्यूरेशन था, टाइम पीरियड था, इसको हम क्या कहेंगे? इंक्यूबेशन पीरियड कहेंगे। इस दौरान जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स हम कहते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ काज करते हैं। तो जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपना नंबर बढ़ाते हैं, बॉडी में एंटर होते ही एकदम अटैक नहीं करते, रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर बॉडी को अटैक करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में 2 बातें हैं। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया गया जिसमें 100 मलेरियल पेशेंट्स को प्लेस किया। जब इनके ब्लड को माइक्रोस्कोप के ज़रिए एग्जामिन किया तो प्लाज्मोडियम पाया गया। दूसरी बात कि एक कंट्रोल ग्रुप लिया गया जिसमें हेल्दी पर्सन्स को प्लेस किया गया, और जब इनके ब्लड को ऑब्ज़र्व किया गया तो अकॉर्डिंग टू योर बुक प्लाज्मोडियम वाज नॉट फाउंड इन देयर ब्लड। प्लाज्मोडियम वाज नॉट फाउंड इन देयर ब्लड। 2 बातें होंगी। तो इससे क्या साबित हुआ? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में मलेरियल पेशेंट्स में प्लाज्मोडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया गया और हेल्दी पर्सन्स में कंट्रोल ग्रुप में नहीं पाया गया। तो इससे रिज़ल्ट निकलता है कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। क्यों? क्योंकि ऑल मलेरियल पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, whereas healthy persons was free from plasmodium। तो इससे क्या साबित हुआ कि प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में प्रेजेंट है और इनमें नहीं है, तो इसका मतलब है यही प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का काज है। अब ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था इसका हमने रिज़ल्ट ढूंढ लिया, ये सॉल्व हो गया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। अब साइंटिस्ट के जहन में उस वक्त सवाल अराइज़ हुआ
कि ये प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में आता कहाँ से। ठीक है, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, ये हमारी बॉडी में आता कहाँ से। एक दूसरा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मलेरिया। तो आज हमने बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई किया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पे, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था जिस पे हमने बायोलॉजिकल मेथड को अप्लाई किया। 3 स्टेप्स। सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस, जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशंस की वो क्या क्या थी कि इट इज़ द डिजीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर, कि मलेरियल पेशेंट को बुखार और चिल्स होते हैं। फिर मार्शी एरियाज़ एंड मलेरिया के अंदर रिलेशन होता है, क्योंकि मार्शी एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनमें मलेरिया कॉमन है। फिर इसके बाद हमने देखा कि मार्शी वाटर पीने से मलेरिया नहीं होता, जो वॉलंटियर्स ने पानी पिया। फिर इन ऑब्जर्वेशन के बाद, इस फर्स्ट स्टेप के बाद दूसरा स्टेप स्टार्ट हुआ कि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाई गई कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। ठीक है, अब प्लाज्मोडियम, वो लेवरॉन की जो स्टडी थी उसने जो टेनी ऑर्गेनिज़म्स देखे ब्लड के अंदर मलेरियल पेशेंट के, उसकी बेस पे ये बनाया, हाइपोथेसिस बनाया। फिर इसको लॉजिकल बनाया, यानी कि डिडक्शन का स्टेप हुआ कि अगर इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन एवरी मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अब इस डिडक्शन को टेस्ट किया गया। अब इस हाइपोथेसिस को, जो कि लॉजिकल बना डिडक्शन में, ये हाइपोथेसिस जो कि इफ़ देन की मदद से लॉजिकल बना, इसको एक्सपेरिमेंट में टेस्ट किया गया। तो हाइपोथेसिस क्या थी कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो हमने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, कंट्रोल ग्रुप लिया और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया। कंट्रोल ग्रुप में हेल्दी पर्सनस लिए, उसमें पेशेंट लिए। हेल्दी पर्सन में प्लाज्मोडियम नहीं था और जो पेशेंट्स थे मलेरियल उनमें प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो रिज़ल्ट क्या निकला, यस प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, यानी कि हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया गया, हाइपोथेसिस ट्रू साबित हुआ। प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, वो ट्रू साबित हुआ। तो लेवरॉन की जो ऑब्जर्वेशंस थी वो सच साबित हुई। वो जो ब्लड में उसने ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स देखे वही मलेरिया का काज थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।